CLAT and ALET aspirants, welcome to CLAT Whispers. So as you all are aware that NLUD and Consortium दोनों ने ही अपनी एग्जाम डेट शीट रिलीज कर दी है and both the exams of CLAT and ALET will be conducted on the same day, on the same date and that too on the same time. दोनों ही एग्जाम शेड्यूल हुए हैं 7th of December 2025 के लिए from 2 PM to 4 PM. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री कि दोनों एग्जाम्स की डेट्स क्लैश की है एंड आई डोंट नो हाउ दे आर गोना एडमिनिस्टर दिस, हाउ एवरीथिंग इज़ गोना हैपन, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ दोनों एग्ज़ाम शायद सेम डे पे कंडक्ट हो सकते हैं एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि शायद दोनों में से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अपनी डेट चेंज करेगा. आई नो दिस पीरियड विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेरी टीडियस फॉर यू एंड यू माइट बी वेरी एंशियस कि कैसे क्या होगा, दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था बट अब यू हैव टू चूज़ वन. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हैव टू चूज़ वन. So today's video I will be talking about that what are the factors you should consider while choosing one examination अगर date sheet नहीं change होती है तो. So both the examination have their own pros and cons of attempting. Talking about the ALET first, the pros of attempting the ALET would be less number of competition this year. हर बार लास्ट ईयर तक ये होता था दैट whoever is attempting CLAT used to attempt ALET as well क्योंकि दोनों का कोर्स सेम ही होता था. So the number of people attempting the ALET was much higher. But this time if they have to choose between the two, तो बहुत सारे लोग CLAT को ही प्रेफर करेंगे एंड ALET को बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे. So this is the only advantage I can see जो आप कंसिडर कर सकते हो while selecting for ALET. But the cons of selecting ALET would be less number of seats. जितने कम number of seats होती है उतने ही कम number of chances होती है selection की. Again, there are less than 55 seats for general category in NLUD. So that would be the biggest advantage I would say of attempting the ALET. And apart from that, the ALET examination is very unpredictable. जैसे आप CLAT कभी कभार थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ प्रिडिक्टेबिलिटी रेट इन CLAT, बट ALET में ऐसा कुछ भी नहीं है. NLUD ऑलवेज सरप्राइजेस द स्टूडेंट्स विद अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर. तो ALET को प्रिडिक्ट करना इज थोड़ा डिफिकल्ट. सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ लक, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिपरेशन, सो यू शुड चूज रियली वाइजली. Now talking about the CLAT pros and cons, the pros of attempting the a CLAT would be the number of seats. CLAT के अंदर total there are 1500 seats are there for general category अगर मैं सारे ही NLUs को count करूँ तो. And if you are talking about top 10 NLUs तो I would say 1000 seats for general category. Apart from that, CLAT के अंदर the CLAT score is accepted by various private universities as well, various state funded universities as well, and NLUs तो accept करता ही है. Apart from that, talking about the disadvantage you might face for attempting CLAT would be high number of aspirants giving the examination. काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ CLAT देंगे and that's why they will be more focused towards CLAT only. तो आपका यहाँ पे competition थोड़ा सा increase हो जाएगा compare किया जाए ALET से. So again यहाँ पे भी the number of seats and the number of students who will be attempting the examination is also really high because again seats भी अगर high है तो competition भी यहाँ पे high होगा. Apart from that, you have to choose the college according to your priority. If your priority is just NLUD, then you should solely focus on ALET from now onwards. लेकिन अगर आपकी priority है that you have to go to NLS, you have to go to NALSAR and any other top national law university, then you should focus on CLAT only. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अभी तक एक भी ALET का मॉक नहीं दिया है, अगर आपने अभी तक ALET की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, यू आर जस्ट सोनली फोकसिंग ऑन CLAT, देन आई वुड सजेस्ट यू दैट डू नॉट स्विच योर प्रिपरेशन बिकॉज अभी इतने समय तक वेन एवर यू हैव स्टार्टेड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर CLAT ओनली. आपने बहुत ज़्यादा ALET की प्रिपरेशन नहीं किया ना, उसके इतने मॉक्स दिए, सो यू आर नॉट वेरी हैंडी फॉर ALET राइट नाउ. तो आप अपनी CLAT की प्रिपरेशन पे ही फोकस कर सकते हो. बट इफ़ यू आर समवन जो कि डे 1 से ही ALET पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, देयर होल एंड सोल फोकस ऑन ALET, उन्होंने काफ़ी सारे ALET के मॉक्स दे दिए हैं, दे बिलीव दैट उनका ALET तो निकल ही जाएगा, देन दे कैन कंसिडर ALET एज वेल.
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कि ये दोनों एग्जामिनेशन सेम डेट पे कंडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज अगेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू, क्योंकि दोनों के ही सेंटर्स सेम होते हैं, क्योंकि दोनों में ही सेम इन्विजिलेटर्स होते हैं, एंड बोथ दीज आर ऑफ सेम नेशनल लेवल एग्जामिनेशन ऑफ सेम स्ट्रीम. तो आई डोंट थिंक कि ये दोनों एग्जामिनेशन एक डे पे कंडक्ट होंगे. ईदर कंसोर्शियम और NLUD विल चेंज दी डेट शीट, बट वी हैव टू वेट टिल देन. यू डोंट हैव टू पैनिक, यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि ये जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है. दिस फेज इज़ फॉर एवरी वन, सो प्लीज़ डू नॉट गेट वेरी एंशियस, प्लीज़ डू नॉट गेट वेरी स्ट्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे क्या होगा. एवरी थिंग विल फॉल इन टू प्लेस. राइट नाउ आप अपने एंड से ये कर सकते हो दैट यू कैन मेल कंसोर्शियम एंड NLUD that you both the exams are clashing, you are preparing for both the examination, and you want both the examination to be conducted separately like last year and everything. तो वहाँ पे आप मेल कर सकते हो ताकि उन पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो कि उन्हें डेट्स चेंज करनी होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी फ्यूचर में होगा, क्लैट विस्पर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू. वी आर देयर टू गाइड यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, एंड जो भी नोटिफिकेशन आता है विल अपडेट यू द सेम. टिल देन, बाय बाय.